Hello everyone, welcome to Super Kalam. I am your teacher Arpita Sharma, and this was the most requested session from those who are preparing for upcoming prelims examination. And not just for prelims, but even if you are studying for mains, this is the most important video that I have made so far on this channel. This video is not going to help you understand how important it is to stay very loyal and disciplined towards your roots in your preparation. But even if you are a beginner, then also this class is going to help you walk on the right direction, the right path, which initially is very hard for majority of the aspirants to follow. Why? Because there is no stoppage on the amount of resources which are available, whether it is online or offline. There is no limit on the amount of mentorship that people are claiming that we provide. There is no limit on resources, magazines, current affair sources, videos, etc. in the market everywhere, whether it is online or offline. There is no limit to the amount of guidance that is being available right now. But what is harmful is when you go through all these resources at once, you feel overwhelmed, you feel under focused, and you also feel underconfident when you start your preparation if you jump into all these resources, guidance, etc. in the early stages of your preparation. And that's when I thought ki it is very important to streamline your preparation from the very start. If you really want to make sure ki by the time you January first week arises or comes, you will be super confident about your syllabus, the coverage of syllabus, your discipline, and the type of question that you are about to attempt in your actual exam. ये वीडियो आपको हेल्प करेगी थ्रू आउट योर जर्नी, बट द ओनली कंडीशन इज दैट यू फॉलो दिस guidance, follow this strategy, follow this particular advice that I'm about to give you with diligence. Now this session is on 5 mistakes UPSC aspirants should avoid for prelims. 5 mistakes हैं, 5 गलतियां ही हैं. There are not more than five. 5 mistakes are there, which usually every aspirant, majority, 98% aspirants, they commit during their first attempt or during their attempt, whether it is first or second. इसमें इन पांचों में से कोई एक गलती, दो गलती या पांचों की पांचों मिस्टेक्स हमारी लाइफ में चल ही रहे होंगे. Now, first important aspect before we start this session is please get your syllabus. UPSC का syllabus बहुत ज़रूरी है. If you haven't yet downloaded the syllabus, please download the syllabus first. UPSC notification, latest notification. If you are watching it during your exam, let's say 2025 के टाइम पर देख रहे हो तो 2024 की नोटिफिकेशन आई होगी. उसको डाउनलोड करके प्लीज उसमें सिलेबस लिखा है, उस सिलेबस को जरूर देखना है. It is a must for all of you before you start your preparation because you will be misguided if you do not go through the syllabus first. लोग करेंगे मिसगाइड आपको बाय टेलिंग यू दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, दैट टॉपिक इज रेलिवेंट, भले ही एक्चुअल एग्जाम में उस टॉपिक की जीरो रेलिवेंस हो. So make sure that first and foremost thing, syllabus is mandatory. Now we will start our session. Make sure that in this throughout this journey na, you maintain a small journal where you journal your thoughts every day of your preparation, every emotion that you are going through, every thought that you are having. उसको लिखना शुरू कर दो, journaling करना शुरू कर दो. And in that same journal you can also write down the pointers that you are going to learn from this class. Okay. नाउ मिस्टेक नंबर 1, हम डायरेक्टली मिस्टेक्स पे आते हैं और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इन पांचों में से कितनी मिस्टेक्स हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन में अभी तक कंडक्ट कर रहे थे या कमिट कर रहे थे. एनी वन, और इवन इफ यू आर कमिटिंग ऑल द 5 mistakes इन योर जर्नी, जस्ट बी ऑनेस्ट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके. नाउ लेट्स गो टू मिस्टेक नंबर 1. सिलेबस आप लोगों के पास है ही. अगर आपने सिलेबस नहीं डाउनलोड किया है तो सबसे पहली गलती तो वही है. But if you have the syllabus, the first important mistake that everybody, majority, 99% students, they are committing is ignoring the previous year questions. अब ignoring the previous year questions, what does it mean? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि you are ignoring the UPSC's mindset. आप UPSC के mindset को ही ignore कर रहे हो, because through the previous year questions only you will understand how UPSC thinks.
जब आप देखोगे कि वो किस तरीके के क्वेश्चन बना रहे हैं, तभी तो समझ आएगा कि वो सोचते कैसे हैं। इफ यू आर स्टडिंग इन्फ्लेशन, आप पढ़ रहे हो आज इन्फ्लेशन, and in inflation you have studied almost everything from the definition to the types of inflation. Then the cause of inflation, then you have studied the impact of inflation, then you have studied the current trend in inflation, आपने current trend भी पढ़ लिया inflation में, the current rate of inflation also you have studied. But you don't know कि here UPSC is repeatedly asking question on types of inflation and impact only. तो आप क्या करोगे, आप अपना पढ़ तो सब लोगे बट आपको पता नहीं होगा कि इस पढ़े हुए को इम्प्लीमेंट कैसे करना है. When you are studying anything, always remember on that topic practice PYQs so that you understand कि I have studied so many things, but what UPSC is going to ask or how UPSC is going to ask on this topic, that should be clear in my head. That clarity will come only through PYQs. जैसे कि मैं अभी आपको लाइव दिखाती हूँ, ठीक है. वी वर स्टडिंग इन्फ्लेशन ना, हम अभी इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर रहे थे. नाउ आफ्टर यू हैव स्टडिड इन्फ्लेशन, यू गो टू सुपर कलाम and ask, give me PYQs on inflation. Here you will ask, यहाँ पर आप पूछोगे, give me PYQs on inflation. And see, right from 2013, all those questions with you which UPSC has asked on inflation are on your screen. Now you can practice them. और देखो ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आया इन्फ्लेशन के ऊपर. आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड. सी, a rise in journal level of price may be caused by increase in money supply, decrease in aggregate level of output, increase in effective demand. This money supply and effective demand, these are the concepts that you study in inflation also. Ab how these concepts are being molded in form of question and they are being asked in prelims, वो आपको PYQ के थ्रू ही पता चलेगा, वरना आप बस डेफिनेशन को रट लोगे, ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे, बट यू विल नेवर अंडरस्टैंड हाउ क्वेश्चन कैन बी formed from this topic. That you will understand through PYQs only. For example, in the current affairs, you have studied about consumer price index number. But what kind of question they can ask? 2015 में question पूछा गया है. Economic growth is usually coupled with deflation, inflation, stagflation, hyperinflation. Types of inflation you have studied, but what kind of question they can ask? वो आपको पता चलेगा prelims के PYQ से. 2011 में देख लो कितना unique question पूछा था. This question has not been repeated. It was a unique question. Okay. सिमिलरली नॉमिनल इफेक्टिव रेट आप पढ़ते हो, रीर पढ़ते हो, रीर और नीर आप न्यूज में देखते हो, यू रीड दीज टर्म्स इन करंट अफेयर्स, बट हाउ यूपीएससी आस्क क्वेश्चन, this is the live example of 2022 prelims question about near and rear. That is why I was saying, you understand the concept, you read it, but it is still incomplete if you are not practicing PYQ on that topic. Now let's say you have practiced or understood Swadeshi and boycott movement today, और लेट्स से आपने क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा. सो यू आफ्टर स्टडिंग दैट टॉपिक यू विल आस्क सुपर कलाम, गिव मी PYQs ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट. एंड सी, फ्रॉम 2019 अ क्वेश्चन केम, 2015 में आया था, अभी रिसेंटली इन 2024 ऑल्सो अ क्वेश्चन केम. पैटर्न चेंज के बेसिस पे क्वेश्चन भी इसमें मेंशन्ड है. 2021 रिलेटेड क्वेश्चन, 2012 में क्वेश्चन आए. सो मेनी क्वेश्चंस ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट सिंस 2011 हैव बीन आस्क्ड. And here you can practice them. In Quit India movement, you study about different personalities who were involved in the movement, right? But how those personalities can be framed as question in your prelims exam, that you will understand only through PYQs. ये है power actually में previous year questions की. I hope अब आपको ये समझ आ गया कि why PYQs are important and how ignoring PYQs is the first mistake that you all are doing in your preparation. यही गलती सबसे पहले शुरू होती है, ठीक है? क्योंकि UPSC को समझना है, अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यूपीएससी, हाउ यूपीएससी's ब्रेन वर्क्स, you can understand that only through PYQs and no mock test, nothing other guidance, no other guidance can make you understand UPSC's mindset. Only UPSC के PYQ से ही समझ सकते हो, whether it is for prelims or it is for mains. Moving ahead, the next mistake that everybody does from the very start is neglecting CSAT. Students often think, अरे we are good in maths, we will study CSAT 20 days before the prelims examination. ये गलती करते हैं. This is the first mistake. 20 days before prelims you can study CSAT.
जस्ट प्रैक्टिस योर PYQs एंड दैट इज इट. सबसे बड़ी मिस्टेक. Second mistake, we are weak in CSAT. So what we should do? We should join coaching from the very start of our prelims preparation. Coaching from the start of the preparation. CSAT की कोचिंग लगा लो, ठीक है, कोचिंग ऑफ CSAT स्टार्ट से ही. अब उस कोचिंग में क्या होगा? दे विल टेक मोर एंड मोर क्लासेस, दे विल इलेबोरेट द क्लासेस, अल्टीमेटली द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, दे दोज विल बी डिफरेंट. बट आपने तो स्टार्टिंग में ही कोचिंग लगा लिया, वो खिंचता जाएगा, आप बोर हो जाओगे एक टाइम पर, राइट? एक टच बीच में छूट जाता है, ये होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट साइकोलॉजी. बीच में टच छूट जाता है बिकॉज बोर हो जाते हैं स्टार्टिंग से पढ़ते पढ़ते. देन व्हाट शुड बी डन? क्या किया जाए इस केस में? एज आई टोल्ड यू, PYQs आर योर ब्रह्मास्त्र. तो फर्स्ट डाउनलोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट लास्ट 5 years के क्वेश्चंस तो डाउनलोड कर लो. When you download the PYQs, you go through the sections. For example, the sections can be comprehensive reading, एनालिटिकल सेक्शंस जिसमें प्योर मैथ्स के फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, या रीजनिंग हो गया आपका, ठीक है. आपने ये सारे सेक्शंस देखे पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर में. यू गो थ्रू ऑल दीज सेक्शंस. डेटा इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन हो गया, ठीक है. नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट 4-5 years, you will realize one thing, which is the section you are good at. गुड, वीक, कंफर्टेबल, ठीक है. कौन से सेक्शन है जिसमें आप एक्सपर्ट हो? सम स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन मैथ्स, सम स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन डेटा इंटरप्रिटेशन, सम गुड स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन रीजनिंग. वीक, कुछ लोग वीक होते हैं मैथ्स में, कुछ रीजनिंग में वीक होते हैं, कुछ जंबल पजल्स में वीक हो जाते हैं. एंड कंफर्टेबल, दैट मीन्स रीजनिंग में कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं कि ओके आफ्टर फोकसिंग ऑन रीजनिंग, मतलब वी आर नॉट वेरी गुड इन रीजनिंग, बट इफ वी प्रैक्टिस रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन 3-4 times, इट वी विल बिकम गुड एट इट. कुछ कंफर्टेबल लेवल भी होता है जो आपको समझ आ जाता है, बट वो आपको अपने दिमाग के हिसाब से समझ आएगा जब आप PYQs देखोगे. तो फर्स्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी go through the PYQs first and identify your zones in which section you are weak, good or bad. Now the second stage would be basic books होती हैं आपके CSAT के लिए. RS शर्मा की बुक हो जाती है, ठीक है, जिसमें बेसिक पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आर मेंशन्ड ऑफ CSAT. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज, बिकॉज मैथ्स का अगर आप सेक्शन देखोगे ना, बेसिक मैथ्स है. प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, ठीक है. LHS RHS के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, दैट वी स्टडीड इन क्लास 8th में, क्लास 6th में, क्लास 7th में LHS RHS पढ़ा है हमने, राइट. सी वेटेज, मतलब देखो, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू PYQs, यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. व्हाट इज दैट वन थिंग? कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि द लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट. आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है. CSAT इज अ क्वालिफाइंग पेपर, विच मीन्स यू डोंट हैव टू स्कोर फुल मार्क्स हेयर. पूरे मार्क्स तो लाने नहीं है. 67 आप लेकर आपको मिनिमम है यहाँ पर रिक्वायरमेंट, एंड उसके ऊपर मैक्सिमम हमें अप्रोच करना है. जो बेसिक प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस से आपका सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम. बट वो शुरू कहाँ से करना है? स्टार्टिंग से ही आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स और कोचिंग नहीं उसमें जंप करना. फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड एनालाइज योर ब्रेन. पहले अपने ब्रेन को तो समझो कि हम किसी चीज में अच्छे हैं या नहीं, किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में मेहनत की जरूरत है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें सेल्फ स्टडी से भी काम बन जाएगा, रिगरस प्रैक्टिस से काम बन जाएगा. और अगर लगता है कि डिसिप्लिन की कमी है अपने अंदर, रोज प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगी, तब आप कोचिंग के बारे में सोच सकते हो. देन यू कैन गो फॉर कोचिंग. बट फर्स्ट देखो, एकदम हार मत माना करो. आजकल क्या होता है कि बिकॉज अटेंशन स्पैन हमारा बहुत कम हो गया है, तो हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं हार्ड वर्क करने से. अपने आप से दिमाग लगाना ही नहीं है हमें, क्योंकि आलस आ जाता है, कोई रेडीमेड हमें सोल्यूशन मिल जाए. बट CSAT इसीलिए पेपर रखा गया है, दे वांट टू टेस्ट हाउ मच ऑफ द एफर्ट्स यू कैन पुट थ्रू योर ओन हार्ड वर्क एंड थ्रू योर ओन ब्रेन. दैट इज व्हाट इज बीइंग टेस्टेड इन CSAT. ये हार्श रियलिटी लगेगी आपको, बट ये हमारी रियलिटी है. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया? सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 10th के, जिस पर आपको मास्टरी हासिल करनी है. और ये देखना है कि वेटेज क्या है. एवरी सेक्शन हैज डिफरेंट वेटेज. अकॉर्डिंग टू द वेटेज अलॉटेड टू दीज सेक्शंस, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आई हैव टू पुट इन एफर्ट्स इन विच सेक्शंस. सबसे ज्यादा एफर्ट मुझे किस सेक्शन में रखना है, और ये क्वालिफाइंग पेपर है, मुझे इसको क्वालिफाई करना है चाहे कुछ हो जाए. 67 से तो ऊपर ही लाऊंगा, 70 से ऊपर स्कोर लेकर चलना है दिमाग में. ओके,
Now coming on to the third important mistake which again everyone is doing. Why? Because उनकी भी गलती नहीं है, मार्केट में है ही इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स, रिसोर्सेज, मैगजीन, इस कलर की बुक, उस कलर की बुक अवेलेबल कि we lose focus. At Super Kalam, Vimal sir and myself, we have always emphasized on one fact: start with your basics. If you are starting with any coaching material or any other material, you are committing the biggest mistake of your life. स्टार्ट विद द बेसिक्स. बेसिक्स हैं आपकी एनसीआरटीज. अब मैं आपको एक रफ स्ट्रक्चर देती हूँ एनसीआरटीज का. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी, क्लास 9th to class 12th एनसीआरटी इज इंपॉर्टेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, क्लास 11th to 12th एनसीआरटी इज इंपॉर्टेंट. इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है. ऑल्टरनेटिव क्या है इसका? दैट यू कैन रेफर टू तमिलनाडु क्लास 11th to 12th स्टेट बोर्ड बुक ऑल्सो. दिस इज द ऑल्टरनेटिव. When you're talking about pol science, क्लास 11th to क्लास 12th की 4 टोटल किताबें हैं जो आप प्रेफर कर सकते हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स. वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं प्रिलिम्स में ऑन प्रीएम्बल, ऑन लिबर्टी, ऑन फंडामेंटल राइट्स. ओके. देन नेक्स्ट आपका इकोनॉमी हो जाता है. इन इकोनॉमी क्लास 11th टू क्लास 12th एनसीआरटी मैक्रो माइक्रो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. यू डोंट हैव टू रटोफाई द फॉर्मूलाज. नो, इफ यू हैव इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल देन यू हैव टू गो थ्रू द फॉर्मूलाज. ओके. तो ये बेसिक एनसीआरटीज मैं आपको बता रही हूँ. दीज आर द बेसिक्स दैट आई एम टेलिंग यू. इससे तो स्टार्ट करना ही करना है आपको. यू हैव टू स्टार्ट विद दीज. ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमी, ये 4 आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में. 4 कोर सब्जेक्ट्स इन प्रीलिम्स. एंड यू हैव टू स्टार्ट विथ फाउंडेशन. अगर आपका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है तो आप बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी. फिर आप क्या होगा, अल्टीमेटली रट्टाफिकेशन कर रहे होगे या फिर रेडीमेड वीडियोज हमको चाहिए और फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है. सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू इन सेविंग योर टाइम. ओके. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, इग्नोरिंग डेली टारगेट्स. देखो, कंसिस्टेंसी समथिंग विच इज़ वेरी बोरिंग. आई अंडरस्टैंड कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, मैं जानती हूँ, समझती हूँ. बट यही बोरिंगनेस आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देती है. लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स भी यहीं से निकल कर आते हैं. what is boring, what is not very very exciting, that is something which will give you long lasting success. और जो अभी आपको शॉर्ट टर्म डोपामीन बूस्ट दे रहा है ना, वो चीज आपको लॉन्ग टर्म कभी स्टेबली आपके साथ रुकेगा ही नहीं. तो आई हैव दिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड एग्जांपल हियर. कहते हैं इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी राहु इज समथिंग हु गिव्स यू नो रिजल्ट्स ऑल ऑफ अ सडन. एकदम रिजल्ट्स देता है आपको. बट इट इज सेड राहुज रिजल्ट्स और राहुज सक्सेस इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग. इट इज टेम्पररी, इट इज शॉर्ट. बट द रिजल्ट इन सक्सेस विच सैटर्न गिव्स यू, दैट इज ऑलवेज लॉन्ग लास्टिंग. वो आपके साथ मरते दम तक सक्सेस रहती है. सिमिलरली, दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. सिमिलरली, द कंसिस्टेंसी एंड द डिसिप्लिन दैट यू आर शोइंग सिंस डे वन, दैट इज गोइंग टू लास्ट लॉन्ग. ये आपको आपके मुकाम तक लेकर जाएगा इन लाइफ. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम. लाइफ में आगे पहुंचाएगा आपको. एंड द सेम थिंग वी आर डूइंग इन ऑन आर टेलीग्राम कम्युनिटी सुपर कलाम IAS. हम यहाँ पर डेली टारगेट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग, देन 9 o'clock इन द मॉर्निंग, देन 4 PM इन द इवनिंग, देन 6 PM इन द इवनिंग, देन 8 PM आपकी लाइव क्लास होती है. डेली टारगेट्स वी आर गिविंग. एंड स्टूडेंट्स हु आर diligently following these targets since the last few months, they have seen tremendous results in their performance. उनके मेंस में एक्यूरेसी परसेंटेज, आंसर राइटिंग में इंक्रीज हो रहा है, प्रीलिम्स में एक्यूरेसी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, स्कोर्स बढ़ रही हैं, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है. दैट इज द पावर ऑफ डेली टारगेट्स. इवन इफ यू हैव मेड डेली टारगेट्स फॉर योर ओन सेल्फ, देन ऑल्सो फॉलो देम, डोंट इग्नोर देम. ऐसा नहीं है. डेली टारगेट्स ऑल्सो रिमेंबर दे शुड बी अचीवेबल, प्रैक्टिकल होने चाहिए. They should be practical. If they are not practical, that is another mistake that you are committing. आप unachievable targets रखोगे, फिर आपका ही motivation low होगा. Targets should be very practical, achievable. Okay? And the last mistake that students are doing is not taking tests sincerely. अगर आप यहाँ देखोगे ऑन आवर कम्युनिटी, डेली आई गिव टेस्ट टू द स्टूडेंट्स विद वन डायग्राम. सभी तो आज सॉइल प्रोफाइल पढ़ना था तो सॉइल प्रोफाइल के ऊपर एंड PYQs के ऊपर टेस्ट है एंड स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग इट. नॉट टेकिंग द टेस्ट सिंसियरली इज अनदर मिस्टेक. PYQs आपने पढ़ा, आपने टॉपिक्स पढ़ने के बाद PYQs सॉल्व किए, वेरी गुड.
but also after completing that topic, solve at least 15 to 20 MCQs with Super Kalam, so that what you have studied solidifies in your brain. इसी को active recall भी बोलते हैं. This is known as active recall also. Study, practice PYQs, attempt and answer, solve MCQs, close your day. इसको रिपीट मोड पे करना है. व्हेन यू डू दिस ऑन रिपीट मोड, ट्रस्ट मी, आपके चांसेस अपने आप कॉन्फिडेंस में, एंड कॉन्फिडेंस भी और आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज भी दोनों ही इंप्रूव होती है. मैं आपको लाइव एग्जांपल इसका देती हूँ. ठीक है, दिस इज आवर सुपर कलाम. ठीक है, आप माई प्रोग्रेस में जाओगे ऊपर, सी ओवर हियर इन द लीडर बोर्ड, सो मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग लाइव. ये स्टूडेंट का डेटा है. कॉनन, मुस्कान, दीक्षा, सिम्मा, आरिष्टी, मेहरीन, ओपम, all these students are practicing questions and accuracy level देखो 99%, 89%. they have been practicing daily. ये daily discipline की पावर है. ओके, इफ अगर आपको खुद से टारगेट्स कहीं लिखने में प्रॉब्लम है, आप सुपर कलाम पे अपने टारगेट सेट कर लो, गोल सेट कर लो, कम से कम उस गोल को तो फॉलो करो, है ना. तो दैट विल ऑल्सो गिव यू another level of confidence. So these were the 5 mistakes that everyone commits. You will say, I can say they commit these mistakes on a daily basis, but they are not even aware of these mistakes that they are committing. ऐसे बहुत cases आते हैं. When students come for guidance and mentorship, they often say, मैम हो नहीं रहा, हो नहीं पाता, तैयारी नहीं हो पाती, याद नहीं रहता. When I ask them, are you covering PYQs? Their answer is no. Have you started CSAT? Answer is no. Are you covering NCRTs? Answer is no. Daily targets follow कर रहे हो? Answer is no. तो फिर कैसे होगा जब आपके बेसिक मिस्टेक्स रिपीट मोड में हो रही हैं? तो फिर कैसे होगा, है ना. So I hope this class will boost up your confidence by telling you and making you aware कि it is simple if we stick to the basics. आप मुझे बताओ इसमें से कितनी मिस्टेक्स आप लोग कवर कर रहे थे कमेंट सेक्शन में. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट.